Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 13th July 2021 and we are going to discuss the important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. सो आज का हमारा पहला न्यूज है इंडिया तिब्बत पॉलिसी। रिसेंटली दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं, उनको हमारे पीएम मोदी ने जन्मदिन का ट्वीट किया है और उनको बधाई दिया है ट्विटर के थ्रू। ये देखने में बहुत छोटी सी बात है, बट एक्चुअली इसके मायने बहुत अलग है। दिस शोज इंडियाज पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स तिब्बत। अब ये लाजमी सी बात है कि आखिर ये चीजें हुई कैसे, मतलब ये जो इंडिया की जो पॉलिसी है डायरेक्टली तिब्बत के अगेंस्ट कैसे चेंज हो गई। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि ऑलरेडी तिब्बत की पॉलिसी चेंज होना एक ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि चाइना का जो हमारे जो बॉर्डर एरिया में या एलएसी में जो स्टैंड ऑफ है और चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज है, उसके खिलाफ इंडिया नीड टू पुट some extra load, some extra pressures, some way or other in the minds of the Chinese president, that if they are going to play different games, or if they are going to play certain things which is against India, then India will also going to explore all other options which is available in its hand against China. सो बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है इंडियन गवर्नमेंट का ये। और अभी तक के तिब्बत की जो आमतौर पे जो हमारी जो पॉलिसी रहती है, वो पॉलिसी के अगेंस्ट, ये ट्रेडिशनल पॉलिसी के अगेंस्ट ये शिफ्ट है। तो हालांकि पीएम मोदी ने जो ट्वीट में लिखा है, उन्होंने लिखा है, स्पोक ऑन फोन टू हिज हॉलिनेस द दलाई लामा टू कन्वे ग्रीटिंग्स ऑन हिज 86th बर्थडे, वी विश हिम ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ये जो छोटा सा ट्वीट है, ये चाइना को लगभग कहीं ना कहीं बहुत हद तक पैनिक कर दिया है। और इसके अगेंस्ट में चाइनीज जो कुछ सोल्जर्स हैं और इवन कुछ चाइनीज जो कॉमन सिविलियंस, उन्होंने हमारे जो बॉर्डर एरियाज है एलएसी पर, वहां पर आके कुछ अपने फ्लैग वगैरह को दिखाया है, और इंडिया के अंदर में कुछ चाइनीज जो सिटीजन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। क्या है ये सारा मामला, थोड़ा समझते हैं। देखिए, न्यूज ये है कि recently some Chinese nationals protested against the celebrations of the birthday of the Dalai Lama in India. जैसे कि आपको मालूम होगा, दलाई लामा एंड तिब्बत इज वन ऑफ द मेजर इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना relations. And China considers the Dalai Lama a separatist who has great influence over Tibetans, and India seeks to use Tibetan card in order to counter China's continuing aggression at the line of actual control. तो ऑब्वियस सी बात है, तिब्बत जो है चाइना और इंडिया के बीच में ये मेजर इरिटेंट्स है, और इंडिया ने तिब्बत की या चाइना की वही नब्ज दबाई है जो एक्चुअली चाइना को एग्रेसिव या पैनिक कर दिया है।
इस इंडिया के तिब्बत पॉलिसी और पूरा दलाई लामा के इशू को समझने के लिए थोड़ा हमें बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा, आखिर है क्या, हुआ क्या था। देखिए एक्चुअली अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो फॉर सेंचुरीज तिब्बत, आपको मालूम होगा या जान के ताज्जुब होगा कि चाइना का जो बॉर्डर आज इंडिया से जो इतना लंबा बॉर्डर लगता है, पहले शायद बहुत ही कम, बहुत ही छोटा एरिया था जो लगता था, थोड़ा सा रीजन था जो चाइना के संग हमारा बॉर्डर लगता था, और उससे पहले तो और नहीं लगता था। बट जब इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया तिब्बत एज ए पार्ट ऑफ चाइना, देन उसके चलते चाइना डायरेक्ट हमारे नेबर बन गया। तो अगर देखा जाए तो फॉर सेंचुरीज तिब्बत वाज इंडियाज एक्चुअल नेबर, एज मोस्ट ऑफ द इंडियन बाउंड्रीज एंड द 3500 किलोमीटर LAC इज विद द तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन एंड नॉट द रेस्ट ऑफ चाइना। तो रेस्ट ऑफ चाइना के संग ये इस बाउंड्री हमारे नहीं लगते थे। But in 1914, it was Tibetan representative along with the Chinese that signed the Simla Conventions with British India that delineates boundary. तो तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव और चाइनीज मिलके उन्होंने सिमला कन्वेंशन को साइन किया था विथ ब्रिटिश दैट डिलिनेट्स बाउंड्री। However, after China's full accessions of Tibet in 1950, but 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर में पूरा अटैक किया और तिब्बत को पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया। ये बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ जिसके तहत जो दलाई लामा है उस समय वो भाग के यहाँ पर आए थे। That China repudiates the conventions and McMahon line that divide the two countries. तो चाइना जब 1950 में तिब्बत को एक्सेस किया, उसके बाद उन्होंने ये जो मैकमोहन लाइन को मानने से ही इनकार कर दिया। फिर इन 1954 इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद चाइना। इंडिया ने चाइना के संग एग्रीमेंट साइन किया इन 1954, जिसमें इंडिया एग्री करता है कि दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज तिब्बत एज अ तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। ये इंडिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिक भूल थी जो हमने उस समय ये साइन किया था। सो 1954 में इंडिया ने जो साइन किया था उस एग्रीमेंट के चलते, वो एग्रीमेंट जिसके चलते हमें ये सारा इश्यूज हो रहा है, आज जो भी प्रॉब्लम हो रही है चाइना के संग, इट इज ऑल ड्यू टू दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट। सो इन 1959 में फिर क्या हुआ, फॉलोइंग द तिब्बतियन अपराइजिंग, 1959 में तिब्बतियन अपराइजिंग हुई थी एंड द दलाई लामा जो वहां के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं तिब्बतियन पीपल्स के, एंड मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स फ्लेड टू इंडिया। वो और बहुत सारे फॉलोअर्स, लगभग 1000 से ज्यादा, इवन आज तिब्बतियन की पॉपुलेशन इंडिया के जो धर्मशाला रीजन है वहां पर लाखों की संख्या में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स फ्लेड टू इंडिया, वो लोग इंडिया चले हैं। And former Prime Minister Jawaharlal Nehru gave him and Tibetan refugees shelter and helped in setting up the Tibetan government in exile in India. तो तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला से चलती है। The official Indian policy is that the Dalai Lama is a spiritual leader and the Tibetan community in India with more than 1 lakh exile is not allowed to undertake any political activities. But India में जो जितने भी तिब्बतियंस हैं उनको किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलाउ नहीं है और ये गवर्नमेंट आमतौर पे ये फॉलो करती है। बट रिसेंट इंसिडेंट्स के बाद कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इसमें पॉलिसी शिफ्ट हुआ है इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये सारा इंसिडेंट समझ में आया है। वाई इंडिया शिफ्ट इन इट्स तिब्बत पॉलिसीज। तो अगर देखा जाए इन द इवेंट ऑफ इंक्रीजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन इंडियाज तिब्बत पॉलिसी, and the shift in the policy earmarked the Indian government actively managing with the Dalai Lama in public forum। पहले के जितने भी ये वगैरह थे वो आमतौर पे पब्लिक फोरम शेयर नहीं करते थे, बट हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने पहली बार ये चीजें शिफ्ट की है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रिसाइजली दूसरी बार होगी। फॉर एग्जाम्पल 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनवाइट किया था तिब्बत के जो पीएम हैं, जो एक पीएम इन एग्जाइल है, जो तिब्बतियन गवर्नमेंट के पीएम इन एग्जाइल है, उनका नाम था लोब्संग सांगे, टू हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी। 2014 में इनवाइट किया था। हाउएवर ही डिड नॉट इनवाइट हिम इन 2019, बट 2019 में उनको इनवाइट नहीं किया गया था। एंड फॉर अ सेकेंड ईयर, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो इंडिया आ रहे थे और जिसके चलते वो नहीं चाहते थे इस तरह के कोई रिलेशन खराब हो वहां। बट चाइना इज नॉट दैट टाइप ऑफ कंट्री विच रिस्पॉन्स इन द सेम मैनर, बट रैदर चाइना हमेशा कहीं ना कहीं वो दे यूज टू डिसीव।
दे यूज्ड टू डिसीव ईच एंड एवरी कंट्रीज। सो हम लोग शायद उस समय नहीं समझ पाए थे। एंड द शिफ्ट इन इंडिया तिब्बत पॉलिसी इज मेजरली फोकस ऑन सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स, बट देयर आर मेनी चैलेंजेस पर्टेनिंग टू इंडियाज अप्रोच टू तिब्बत पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि हमें चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, हमें चैलेंजेस मिलेंगे, बट वी नीड टू फेस दोज चैलेंजेस वेरी प्रिसाइजली। अगर समझा जाए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो देखिए आमतौर पे हो क्या रहा है कि तिब्बत की जो डेमोग्राफी है, तिब्बत आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये जो पूरा चाइना है, आमतौर पे चाइना की जो ये रीजन है ये भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड है। दिस इज होल तिब्बत जो हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया का पूरा पोर्शन यहाँ पर जो चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा हुआ, और ये जो रीजन है ये तिब्बत है। तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो हमारे नॉर्थ ईस्ट और ये पूरा रीजन में आमतौर पे चाइना नहीं था पहले। बट ड्यू टू दिस वन 1954 के जो हमने जो एक्सेप्ट किया था, जिसके चलते चाइना डायरेक्टली कंट्रोल करने लगा तिब्बत को। नेक्स्ट, तो अभी हो क्या रहा है, इशू ये है कि चाइना अभी तिब्बत में डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, और मेनलैंड चाइना जो है वहां से लोगों को लाकर वो तिब्बत में रख रहा है, जिसके चलते तिब्बत की जो डेमोग्राफी है वो शिफ्ट हो जाए। तो ओवर द पास्ट few decades, China is promoting people from mainland China to migrate into Tibet, and China is increasing suppressions of the Tibetan population linked to the Dalai Lama and pouring in investment infrastructure projects in the region। तो आमतौर पे चाइना ये कर रहा है कि जितने भी तिब्बतियन जो दलाई लामा के सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनको चाइना आमतौर पे कर क्या रहा है, उनको वहां से मतलब धीरे धीरे उनको खत्म कर रहा है या साफ कर रहा है, और लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, ताकि लोग उस एरिया से वो जो उनकी जो फ्रीडम है उसको भूल जाए वो। तिब्बतियन अगेंस्ट ईच अदर, अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में जो दूसरा जो इंसिडेंस है, दूसरा जो हमारे चैलेंजेस है, रिसेंटली हुआ गया था कि आपको याद होगा कि गलवान वैली का जो इंसिडेंस हुआ था, उसमें इंडियन फोर्सेस का एज था, और इंडियन फोर्सेस आर मोर इक्विप्ड, दे आर मोर लिथल अगेंस्ट द चाइनीज फोर्सेस, एंड चाइना को ये भली भांति मालूम है। अब इसके चलते चाइना किया क्या, क्योंकि चाइना के जो नॉर्मल जो आपके जो सोल्जर्स हैं वो बेसिकली मेनलैंड चाइना से आते हैं, और दे आर नॉट इक्विप्ड इनफ और ट्रेन्ड इनफ टू फाइट इन टेरेन लाइक तिब्बत, जबकि इंडियन फोर्सेस आर हाईली इक्विप्ड एंड हाईली ट्रेन्ड टू फाइट इन टेरेन्स लाइक तिब्बत, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर एक डिफरेंट वॉरफेयर होता है कंपेयर टू द लैंड एरियाज। तो रिसेंटली चाइना क्या कर रहा है, अपने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के तहत वो तिब्बत से नॉर्मल पीपल्स को मतलब अपॉइंट कर रहा है इन मिलिशिया, मींस नॉर्मल आर्मी नहीं, चाइना की आर्मी नहीं, बट एक प्राइवेट आर्मी के तौर पे आप समझ सकते हैं, एक मिलिशिया के तौर पे चाइना तिब्बत के लोगों को अपॉइंट कर रहा है या रिक्रूट कर रहा है फॉर द आर्मी। मतलब they will be used as a private army इन अगेंस्ट इंडिया। सो यहां पर ये चाइना करना चाहता है कि बेसिकली द तिब्बतियंस को तिब्बतियन से लड़वाना चाहता है, जैसे कि हमारे यहाँ भी हमारे इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे तिब्बत के लोग हैं, एंड दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड फाइटर्स। सो बेसिकली हो सकता है कि as India-China tension grows and turned violent after the Galwan Valley clash, China has begun to raise Tibetan militia groups, and further the Indian Army trains the Tibetan Special Frontier Force। आपको मालूम होगा कि SFF जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये तिब्बतियन लोगों का ही एक आर्मी का यूनिट है, जो बेसिकली दे आर फाइटिंग फॉर द लिबरेशंस विच कुड लेड टू तिब्बतियंस फाइटिंग ईच अदर इन द फ्यूचर। तो ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से फाइट करें। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं तिब्बत का हमारा पॉलिसी शिफ्ट करने से, बट दीज आर नॉट मेजर चैलेंजेस एंड इंडिया इज गोइंग टू फेस दिस चैलेंज वेरी इजीली। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली आपने एक मूवमेंट सुना होगा, राइट टू रिपेयर मूवमेंट। ये क्या है, आमतौर पे समझते हैं इसको। देखिए आमतौर पे होता क्या है कि जितने भी फोन्स या हाई एंड जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि एप्पल ले लीजिए या एंड्रॉयड का कोई फोन ले लीजिए या मैकबुक ले लीजिए, आमतौर पे अब देखिएगा कि ये डिजाइंड होते हैं कुछ सालों तक चलने के लिए। जैसे कि सपोज करिए आपने कोई मोबाइल खरीदा, चाहे एप्पल का या कोई एंड्रॉयड फोन खरीदा, उसको देखिएगा कि 4-5 साल बाद वो लगभग मतलब बेकार हो जाता है, उसका आप यूज और फर्दर नहीं कर सकते,
या तो उसके अंदर में बैटरीज की इश्यूज होगी, या तो उसके अंदर में जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये एक मेजर प्रॉब्लम होगा जिससे आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि उसको फेंक कर दूसरा नया लेना ही अच्छा होगा, उसको रिपेयर कराने से अच्छा है एक नया ले लिया जाए। बेसिकली आपको मालूम होगा कि ये जो चीज है, ये कंपनियां या बिग टेक कंपनियां ये आमतौर पर डिलिबरेटली ये करती है और उस प्रोडक्ट्स का लाइफ स्पैन उतना ही बनाती है। मतलब अगर कोई कितना भी अच्छा फोन हो, वो कंपनियां इस तरह से डिजाइन करती है कि वो 5 से 6 साल ही चले, उसके बाद वो फोन नहीं चल सकता। कभी कभी तो एक ऐसा भी केसेस आया था कि ये जो अपडेट्स आते हैं सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर अपडेट पुराने मोबाइल्स को ऑब्सोलेट कर देते हैं, जिसके चलते आप पुराना मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते। या तो बैटरी की प्रॉब्लम हमेशा शो करेगा, हालांकि बैटरी पूरी रहेगी बट बैटरी का प्रॉब्लम शो करेगा, ये सब सारी चीजें। तो इसी के अगेंस्ट एक मूवमेंट चल रहा है कि व्हाई नॉट देयर शुड बी राइट टू रिपेयर मूवमेंट। मीन्स जो कंपनियां जो बना रही है जो फोन या ये जो आईपैड मैकबुक या एंड्रॉइड्स वगैरह फोन, उसमें कंपनियां ये सारे उसके पार्ट्स भी बनाए, पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हो, और मेथड्स हो, लोग कंपनियां बताएं कि किस तरह से रिपेयर हो सकता है। यही मूवमेंट चल रही है और इसी मूवमेंट को हम लोग बोल रहे हैं राइट टू रिपेयर मूवमेंट। थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में। इन रिसेंट ईयर्स कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन अटेम्प्टिंग टू पास इफेक्टिव राइट टू रिपेयर लॉज। The movement traces its roots back to very dawn of the computer era in 1950s, and the goal of the movement is to get companies to make spare parts, tools, and information on how to repair devices available to customers and repair shops to increase the lifespan of products and to keep them from ending up in लैंडफिल्स। जैसे कि ई वेस्ट का बहुत बड़ा आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और अगर ये राइट टू रिपेयर चीजें आ गई या उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलने शुरू हो गए, तो लोग शायद इस डिवाइसेस को फेंके ना और उसको रिपेयर करके उसको वापस से यूज किया जाए। ये पहले जो जितने भी डिवाइस बना करते थे, देखिएगा कि पहले पुराने जितने भी घड़ियां हुआ करती थी या जो बहुत सारे जो डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ करते थे, वो कितने सालों तक चलते थे। और आपने देखा होगा कि कभी-कभी आपकी घड़ी, अब बहुत लोगों के पास ऐसी घड़ियां भी होगी जो उनके दादा या परदादा के होंगे, वो घड़ियां आज भी चल रही है, उसको आप रिपेयर करके चला सकते हो। बट आजकल के जो डिवाइसेस हैं वो नहीं चल सकते। मीन्स मतलब यूज एंड थ्रो वाले सिस्टम हो रखे हैं, जिसका रिपेयर शायद नहीं होता है। आगे अगर समझा जाए तो रिपेयर करने से, रिपेयर इज बेटर देन रिसाइकलिंग। अगर रिपेयर आप उसको कर सकते हो तो उसको रिपेयर करके आप चला सकते हो। इवन ये जो रिसाइकलिंग में वापिस से बहुत सारे एनर्जी वगैरह वेस्ट होते हैं, और अगर रिपेयर होता है तो वो किसी भी तरह का इन्वायरमेंट पर भी कम इफेक्ट पड़ेगा और वो चीजें यूज भी हो पाएगी। दूसरा, रिपेयर सेव्स मनी, ये पैसे का भी बहुत ज्यादा बचत होता है। रिपेयर टीचर्स इंजीनियरिंग, रिपेयर करने से जो इंजीनियर्स वगैरह, जैसे कि आपको मालूम होगा रेडियो इंजीनियर्स या उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स या जो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जो रिपेयरिंग शॉप हुआ करते थे पहले, आज तक वो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड रिपेयर सेव्स द प्लैनेट, ये सबसे बड़ा चीज है जो रिपेयर करेगा। अगर थोड़ा समझा जाए तो राइट टू रिपेयर, द राइट टू रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक रिफर्स टू गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। मतलब एक गवर्नमेंट के थ्रू ये लेजिस्लेशन चाहते हैं दैट इज इंटेंडेड टू अलाउ कंज्यूमर्स द एबिलिटी टू रिपेयर एंड मॉडिफाई देयर ओन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वेयर अदरवाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ सच डिवाइस रिक्वायर द कंज्यूमर टू यूज ओनली देयर ऑफर्ड सर्विसेज। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग जो डिवाइस जो मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं वो सिर्फ वो सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। The idea originally originated from the USA, where the Motor Vehicle Owners Right to Repair Act 2012 required the manufacturers to provide the necessary documents and information to allow anyone to repair their vehicles. ये मोटर व्हीकल रूल्स के थ्रू आया था। बेनिफिट क्या हो सकता है? इट विल हेल्प बूस्ट बिजनेस फॉर स्मॉल रिपेयर शॉप्स विच आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लोकल इकोनॉमिक्स। इट विल हेल्प रिड्यूस द वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो जनरेशन होता है उसको कम करेगा, दैट पाइल्स अप ईच ईयर ऑन द कॉन्टिनेंट्स, एंड इट विल सेव कंज्यूमर्स मनी। सबसे बड़ा बात ये कंज्यूमर्स की मनी बचाएगा। एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू सर्कुलर इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स बाय इंप्रूविंग द लाइफ स्पैन, मेंटेनेंस, रीयूज, अपग्रेड, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट हैंडलिंग ऑफ द अप्लायंसेस। तो ये कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे अगर इस तरह की रिपेयर की पॉलिसीज आ गई तो।
आगे अगर समझा जाए रीजंस फॉर इनकरेजिंग मूवमेंट, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स आर इनकरेजिंग ए कल्चर ऑफ प्लान्ड ऑब्सोलेंस। आपको जैसे मालूम होगा कि जैसे हमने कहा कि ये जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस यूनिट्स होते हैं इस तरह के, वो एक प्लान्ड ऑब्सोलेंस प्लान बनाते हैं, और वो डिवाइस इस तरह से बनाते हैं कि वो 3 या 4 साल चले, उससे ज्यादा नहीं। Planned obsolescence means that devices are designed specifically to last a limited amount of time and to be replaced. This can lead to immense pressure on the environment and wasted natural resources. Manufacturers and electronic devices is a highly polluting process, and it makes use of polluting source of energy such as fossil fuels, which has an adverse impact on the environment. Next, रीजन क्या है अपोजिंग का, क्यों ये कंपनियां मना कर रही है कि नहीं हम लोग करेंगे? बेसिकली उनका भी एक अलग रीजन है। एक तो बिजनेस है, दूसरा लार्ज कंपनियां कह रही है कि इवन इसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सब आ रहे हैं, एंड टेस्ला भी हैव आर्ग्यूड दैट ओपनिंग अप देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू थर्ड पार्टी रिपेयर सर्विसेज और एमेचर रिपेयरर्स could lead to exploitations and impact the safety and security of their devices. वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी थर्ड कंपनी को या थर्ड पर्सन को अगर हम लोग अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे दे, तो एक तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चला जाएगा, और थर्ड पार्टी रिपेयर जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा, हो सकता है कि वो सही से ना करे, और इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ देयर डिवाइसेस हो सकता है खतरे में आ जाए। दूसरा, राइट टू रिपेयर मूवमेंट अगर देखा जाए तो दुनिया में कहां कहां है। द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉलिंग ऑन द फेडरल ट्रेड कमीशंस टू कर्ब restriction imposed by manufacturer that limit consumers ability to repair their gadgets on their own terms. एक तो यूएस में हुआ। दूसरा, यूके टू इंट्रोड्यूस राइट टू रिपेयर रूल्स दैट शुड मेक इट मच इजियर टू बाई एंड रिपेयर डेली यूज गैजेट्स सच एज टीवी एंड वॉशिंग मशीन्स। तो ये यूएस और यूके दोनों ने ये पॉलिसीज चालू कर दी हैं। तो ये कुछ मसले हैं आपके राइट टू रिपेयर से। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है एसओपी फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। न्यूज ये है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इशूड ए एसओपी, उन्होंने एक एसओपी इशू किया है टू डील विद एनवायरमेंटल वायलेशंस। तो अगर कोई एनवायरमेंटल वायलेशंस करता है तो उससे रिगार्डिंग एक एसओपी उन्होंने फॉरवर्ड किया है। क्या है? The SOP is the result of order from a national green tribunal which earlier in 2021 directed the ministry to put in place penalties and an SOP for green violations। अगर कोई ग्रीन वायलेशंस करता है तो उनसे रिलेटेड एक एसओपी फॉरवर्ड किया गया है। कैटेगरीज उन्होंने बकायदा दिया हुआ इस एसओपी के तहत। प्रोजेक्ट्स विदाउट क्लियरेंस, कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे जो विदाउट क्लियरेंस, जैसे कि वायलेशंस इन्वॉल्व केसेस वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्लूडिंग एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैज बिगन विदाउट द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैविंग एक्वायर्ड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा है विदाउट गेटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो उनके लिए होगा। द प्रोजेक्ट दैट आर नॉट परमिसिबल फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ऐसे प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए परमिसिबल नहीं है। तीसरा, द परमिसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट शैल बी एग्जामिन्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेदर सच एक्टिविटी और प्रोजेक्ट was at all eligible for grant of prior environmental clearance। तो प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए कि नहीं, उसके लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए रेड इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव pollution index score of 60 and above is functioning in a coastal regulation zone 1 area, which means it was not permitted at the time of commencement of the project, therefore the activity shall be closed। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज होगी जो इस तरह के एरिया में अगर काम कर रही होगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, पॉल्यूशन इंडेक्स ऑफ एनी इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ए नंबर। अगर बोला जाए तो व्हाट इज पीआई, तो पीआई अगर देखा जाए तो पीआई इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल इज of any industrial sector is a number from 0 to 100, and the increasing value of PI denotes the increasing degree of pollutions load from the industrial sector, and it is developed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and used for categorizations of industrial sector in red, orange, green and white categories। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके तहत वो उसमें देखा जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज आपके रेड में आती है, ऑरेंज में आती है, ग्रीन में आती है और व्हाइट कैटेगरीज में आती है। तो ये कुछ एसओपी है जो रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रोवाइड कराया। आगे देखा जाए नॉन कॉम्प्लायंस जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट्स इन विच प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस हैज बीन अकॉर्डेड बट इट इज इन वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड इन द अप्रूवल। दूसरा, प्रोजेक्ट्स विच आर परमिसिबल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट लॉ बट विच हैज नॉट एक्वायर्ड द रिक्विजिट क्लियरेंस, उन्होंने क्लियरेंस नहीं लिया है। तीसरा, in case of expansion of a project including increase in volume of production, if environmental clearance has not been received,
then the government agency can force the project proponents to revert to the level of construction manufacturing before the expansions. तो ये कुछ चीजें हो सकती है अगर नॉन कॉम्प्लायंस प्रोजेक्ट्स हुआ तो। नेक्स्ट एट द एंड फाइन्स क्या लग सकता है, तो फाइन्स के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि इन केस वेयर ऑपरेशन हैज commenced without the required environmental clearance 1% of the total project cost and in addition 0.25% of the total turnover during the period of violation which will be levied. दूसरा, इन वायलेशन केसेस वेयर द ऑपरेशन हैज नॉट commenced 1% of the total project cost incurred up to the date of filing the applications. जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस ए फाइन ऑफ ₹1 लाख फॉर अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹1 करोड़ विल बी लेविड। कंसर्न रेज बाय एनवायरमेंटलिस्ट वो क्या है, द एसओपी, वो इस एसओपी के अगेंस्ट एनवायरमेंटलिस्ट क्या बोल रहे हैं। द एसओपी नॉर्मलाइजेस पोस्ट फैक्टो रेगुलेशन ऑफ वायलेशंस इन विच वायलेशंस आर फर्स्ट कमिटेड एंड देन द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स फाइल्स फॉर क्लियरेंस बाय विच दे आर लेट ऑफ बाय पेइंग पेनल्टी। वो कह रहे हैं कि अब मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पेनल्टी, पहले तो उन्होंने वायलेशन किया फिर आप पेनल्टी लेके उनको काम करने दे रहे हो, ये भी गलत है। दूसरा, इट इज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ वायलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉल्यूटर पे नॉर्म्स। मतलब पॉल्यूटर्स अगर पेमेंट कर दे तो आप आराम से इस तरह के वायलेशंस भी आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हो, तो जिसके चलते लोग वायलेशन करेंगे फिर वो पेमेंट कर देंगे। तो ये कुछ मसला है जो इन्वायरमेंटलिस्ट रेज कर रहे हैं इस एसओपी के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट जिसको देखेगी। दूसरा अगर देखा जाए तो और भी इनिशिएटिव है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, जैसे कि अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज पब्लिश्ड द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट notification 2020 with the intention of replacing the existing EIA notification 2006 under the Environmental Protection Act 1986. तो EIA already पास किया जा चुका है and in 2017 the ministry had initiated a 6 months amnesty scheme on penalizing green violations which was later extended. तो उसको लेटर क्या हुआ, एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। होप इस कंसर्न को, जो भी कंसर्न्स है इन्वायरमेंटलिस्ट का, उसको गवर्नमेंट उसको देखेगी, अगर उसमें कुछ चेंज करना होगा तो दे विल पर्टिकुलरली डू इट। दिस कंसेप्ट, दिस टॉपिक इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पेपर in environment and ecology. चलिए, that's all for today in DNA segment. At the end हमारा one liner पहला है टाइगर कॉरिडोर इन राजस्थान। द राजस्थान गवर्नमेंट विल डेवलप ए टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग द न्यूली प्रपोज्ड रामगढ़ टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व्स एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व्स along with सरिस्का टाइगर रिजर्व इज अनदर टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो ये लगभग ये 3 से 4 टाइगर रिजर्व्स के बीच में गवर्नमेंट क्या कर रही है, टाइगर कॉरिडोर बनाने वाली है। आप कॉरिडोर समझ लो जैसे कि अगर मान लीजिए ये 4 जगह टाइगर रिजर्व्स है तो यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे डेवलप कर दिए जाएंगे जहां पर टाइगर आराम से आ जा सकता है, तो इसी रीजन को हम लोग कह रहे हैं कॉरिडोर। तो इससे फायदा ये होगा कि टाइगर आराम से मूव कर सकता है। ये जो इस चीज को आप देख सकते हैं, इसमें जो एक फिल्म आई थी अभी रिसेंटली विद्या बालन की, उसमें ये चीजें दिखाई गई थी कि टाइगर बेसिकली अपने जंगल नहीं जा सकता क्योंकि बीच में माइंस हो चुकी है। तो इस तरह के जितने भी ब्लॉकेज होंगे उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, हटाएगी और एक फ्री पासेज प्रोवाइड करेगी टाइगर को आराम से दूसरे जंगल में जाने में। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत कम होगा और टाइगर के पॉपुलेशंस को भी या टाइगर को भी कुछ खतरा नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है राजस्थान गवर्नमेंट का। दूसरा जो है इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन बनाया गया है और ये जो है ये उस शहर का नाम है चक्ररता, टाउन ऑफ देहरादून उत्तराखंड में, और यहाँ पर नियरली 50 स्पीसीज ऑफ लाइकेंस, फॉर्न्स एंड फंगी को रखा गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा लाइकेन फॉर्न्स एंड फंगी जो होते हैं उनको कलेक्टिवली क्रिप्टोगैम बोला जाता है। तो ये पहला एक यूनिक क्रिप्टोगैमिक गार्डन होगा। नेक्स्ट थर्ड जो है वियतनाम अपना पहला ऑनररी काउंसिल जनरल इंडिया में अपॉइंट किया है और वो जो है बेंगलोर सिटी में। तो एक बहुत बड़ा स्टेप्स है टू प्रमोट ट्रेड, इकोनॉमिक्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म एज वेल एज एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन वियतनाम एंड द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो दैट्स ऑल अबाउट द वन लाइनर। सो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।